اس خوبصورت صبح کے لیے، اس پاک سفر کے لیے جس میں خدا نے آج صبح ہمیں پھر سے جمع اکٹھا ہونے کا فضل بخشا، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ پرستش کے لیے، تمام سرزندوں کے لیے، پرستار بیٹے بیٹیوں کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج صبح ہم خدا کے کلام میں سے اخیر زمانہ یا اس کے تعلق سے چند ایسی نشانیاں یا باتیں کہ دوسری آمد پر ہے یا جن کا تعلق ایمانداروں کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے سے ہے، اس تعلق سے ہم چند باتوں کو سیکھیں۔ سو جس طرح سے اب دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں، اور آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہے کسی نہ کسی ملک کی، اور ہم نے پہلے بھی ایک بات سیکھی تھی کہ ہم نے صرف یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے صرف اور صرف دنیا کو یا دوسرے ملکوں کی جنگ کی طرف نظر نہیں رکھنی کہ جنگ ہونے والی ہے، اس کا مطلب مسیح آنے والا۔ اس کے علاوہ جو ہر روز ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے چرچز میں وہ باتیں بھی پوری ہو رہی ہیں جو ہم نے خود اپنی پرسنل لائف میں جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سو جس طرح سے ابھی ہم بدھ والے دن اس بات کو سیکھ رہے تھے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی کپڑوں کے جوڑے ہوں، نئے ہوں یا پرانے ہوں، لیکن وہ اس کے کپڑے میں اتنے داغ لگے نے، میلے کپڑے نے، گندے نے، چھوٹے ہو گئے نے، تو آپ کیا کریں گے کہ آج چلو خیر فلانے کی شادی آ رہی، پاوے 2-3 بڑے بڑے داغ نے، خیر پالا گے، ایسا کریں گے؟ کرو گے تسی نہیں، پر اور بول دے بھی، اور بچے تو میرے پتہ لڑائی پان گے کہ میں نواں لے۔ سو ہم اس کے لیے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے کپڑے خراب ہیں، لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ ہم اپنا انتظام ضرور کریں، وہ ایونٹ آنے سے پہلے، پروگرام آنے سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیں گے تاکہ اس دن ہم کیا نہ ہو ادھر ادھر لپ دے جائیے، لیٹ نہ ہو جائیے، ویسے ہوتے تو لیٹ ہی زیادہ تر پروگرام، یا ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ملے نہ، ہمارے پاس کپڑے نہ ہو، تو ہم اس کے لیے بڑے محتاط رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلانا کام آ رہا ہے، اسی اپنے کام پہ اوور ٹائم کر رہے ہیں، ہم زیادہ کام کریں گے، زیادہ پیسے کمائیں گے تاکہ ہمارا وہ والا وقت، وہ دن، ہمارا وہ ایونٹ جو ہے ہم اس کو بآسانی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ لیکن ایماندار ہوتے ہوئے، مسیحی لوگ ہوتے ہوئے، اپنی روحانی پوشاک کی، اپنے روحانی لباس کی کوئی فکر نہیں کر سکتے، وہ میلا ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے، یا ہمیں ملا ہی نہیں ہے۔ مسیح لینے آ رہا ہے، اس کی دوسری آمد ہوگی، دعوے دار یہ ہے کہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، لیکن ہمارے پاس اس میں داخل ہونے کے لیے وہ لباس ہے یا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ایونٹس میں جانے کے لیے ہم زیادہ فکر مند ہیں کہ اور لباس ہونا چاہیے، ساتھ مہنگا تو مہنگا سوٹ ہونا چاہیے۔ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے اچھی چیز لیں، پاوے وہ دوسرے کی نظر سے نہ آئے، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوبصورت اور اچھی چیز لے کر آئیں، اور یہ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن بطور ایماندار ہوتے ہوئے ہم روحانی معنوں میں سست ہیں، روحانی طور پر روحانی لباس کے لیے نکارا،
कोई काम के नहीं, इसलिए कि उसकी फिक्र ही नहीं। जिस्मानी मामलात में हम ओवर टाइम भी लगा लेते हैं, लेकिन रूहानी लिबास के लिए 10 मिनट दुआ में झुकना बहुत मुश्किल लगता है। चार्ज अगर आधा घंटा लेट हो गया ना तो सूरत शक्ल चेंज हो जाती है लोगों की, यानी वो पता चल रहा होता है उन्होंने, आप पता आप कह रहे होते ने, मतलब मुंह से नहीं कहते लेकिन अपने हिलने जुलने से वो ये कहते हैं कि पादरी साहब टाइम उते हो गया, मुका दो, वो ये कह रहे होते हैं। और जिस्मानी मामलात में 4-4 घंटे डे भी करते हैं और फिर नाइट भी कर लेते हैं, क्योंकि वो इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए याद रखें, अपने रूहानी लिबास के लिए भी मोहतात हैं, उतने ही फिक्रमंद रहें, बल्कि उससे ज्यादा जितने के अपने जिस्मानी मामलात या लिबास के लिए रखें। आए खुदा के कलाम में हम एक बात को पढ़ते, कई दिनों से ये बात सामने आ रही है और कई भाइयों ने इसके ताल्लुक से सवाल भी किया कि इसके बारे में कुछ बताएं। खैर वो उनमें से भाई यहाँ तो मौजूद नहीं है, लेकिन खुदा की मर्जी है कि आज हम इसको सीखें। आए खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल के लिखी गई इंजील और उसका 24वां बाब, और उसकी 21वीं आयत से खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। 21वीं और 22वीं लिखा है, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। बल्कि अगर हम इसकी 15वीं आयत से पढ़े तो लिखा है, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियेल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ यहूदिया में हो, वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला और जो दूध पिलाती। बस दुआ करो कि तुम जाड़ों में या सब्बत के दिन तुमको भागना न पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीतों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। खुदा के कलाम का बड़ा सूरा कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में वहां पर यही जिक्र है, और फिर वहां पर हमें बताया गया है कि वो हलाकत का फरजंद जब जाहिर होगा, हदिया और ज़बिया बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, और वो हलाकत का फरजंद जो है वो हैकल के अंदर या मुकद्दस मुकाम में मकरूह चीज नस्ब करेगा। लेकिन लिखा है कि वो आखिर जमाना के दिन होंगे, और जो कोई यहूदिया में हो वो दोबारा घर को ना जाए बल्कि पहाड़ों में भाग जाए, जो छत पर हो वो नीचे ना उतरे। और लिखा अफसोस उन पर जो उन दिनों में बच्चा जनने की हालत में हो या दूध पिलाती हो। और फिर लिखा है कि वो मुसीबत ऐसी बड़ी होगी कि जब से दुनिया बनी है ना कभी ऐसी बड़ी मुसीबत दुनिया पर आई और ना उसके बाद कभी आएगी। और लिखा है वो दिन अगर घटाए ना जाते तो कोई भी शख्स जमीन पर जिंदा बाकी न रहता, लेकिन बरगजीतों की खातिर वो दिन कम किए गए, घटाए गए, ताकि उसके लोग इस जमीन पर उसके बेटे और बेटियां जाहिर हो जाएं और उसका जलाल जाहिर।
لیکن یاد رکھیں یہاں پر قابل غور جو سیکھنے والی بات ہے وہ ہے مکروہ چیز اور اجاڑنے والی چیز، کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ مکروہ چیز یا اجاڑنے والی چیز کیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جس کا ذکر دانیل کی معرفت یا متی رسول کی معرفت کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں عزیزو کہ مفسرین یا علماء کی اس میں دو تین رائے ہیں۔ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب یسوع مسیح کے اس پیشن گوئی کرنے کے 66 سال بعد روم کا ایک بادشاہ انتیاکس ایپیفینس جس نے روم پر چڑھائی کی اور اس نے وہاں پر یہودیہ کے اندر کہنوں کو قتل عام کیا ہیکل کے اندر، یا اس جگہ پر جو ہیکل کی جگہ تھی، کیونکہ ہیکل اس وقت اس سے پہلے برباد کر دی گئی تھی۔ اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ بات کیونکہ ہیکل کے اندر یا اس جگہ پر کاہنوں کا خون بہایا گیا تو وہ یہ مکروہ چیز ہے جو ہیکل کے اندر تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ نے چڑھائی کی، یہودیوں پر ٹھنڈے بھی ہوتے تھے اور لوگوں کے پاس اپنے ملک رومن یا اپنے ملک کے ساتھ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ ایک لمبا سا بھانا ہوتا ہے، لمبا لوہے کا پیر، اور اس کے اوپر ان کے ملک کا لوگو آپ یوں کہہ لیں، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی نشان، جس طرح پاکستان کا چاند اور ستارہ، پاکستان کے نہیں بلکہ یہ اسلامی دنیا کا نشان، جیسے مسیحیوں کا کراس، سکھوں کی کلپان یا خنجر یا تلوار جس کو کہتے ہیں، اس طرح کے ہر ملک کے اپنے کوئی نہ کوئی مذہبی نشان ہوا کرتے ہیں، اور اس بالی یا لوہے کے پائپ کے اوپر وہ ان کا مذہبی نشان ہوتا تھا۔ اور رومن کا نشان بھی بعض اوقات اوقات یا اور بہت سے سمبل بھی تھے۔ اور جب ان بادشاہوں نے ہیکل پر یا یہودیوں پر چڑھائی کی تو انہوں نے اپنا وہ سمبل، اپنا وہ پین لگا دیا، اور پھر وہاں پر انہوں نے سور کی قربانی بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے چڑھائی۔ اور یہ بھی علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہ مکروہ چیز ہے جس کا ذکر بائبل مقدس میں کیا ہے۔ اور پھر بتوں کو نصب کرنا ہیکل کے اندر، اور یاد رکھیں خدا کے کلام میں دانیل کی معرفت جو ہم پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ سمجھ لے، اور وہی بات ہمیں مکاشفہ کے اندر بھی ملتی ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کے روح کلیسیاں سے کیا ہے۔ آپ میرے عزیزو آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر بظاہر اس چرچ کے اندر سامنے کوئی بت نہیں ہے، اگر یہاں پر بظاہر یا نظر کوئی بت نہیں آ رہا، کسی کا مجسمہ یا اسٹیچو لگا نہیں ہے، لیکن زندگیوں کے اندر، لوگوں کے اندر، خادمین کے اندر بت پرستی کے تعلق سے کوئی تعلیم دی جاتی ہے، کوئی بات کی جاتی ہے، یا لوگوں کے دلوں یا ان کی زندگیوں کے اندر بت ہے، دیوی دیوتا ہے یا جادوگری ہے، غیر معبود ہے، تو یاد رکھیں وہ مکروہ چیز ہیکل کے اندر، لوگوں کے اندر نصب کی جا چکی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہے کہ نہیں پینتیکوسٹل جو ہے وہ بت پرستی نہیں کرتے، اور واقعی نہیں بھی کرتے، یہ سچائی بھی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک شخص بظاہر تو کسی بت کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن وہ حد سے زیادہ لالچی شخص ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بت پرست ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے۔ اور مکروہ چیز، ویسے آپ کے خیال میں مکروہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ بائبل مقدس میں ایک چیز ہے ناپاک، کیا ہے؟ آپ کو کوشش نہیں ہوتا، ناپاک، اور ایک ہے مکروہ۔
नापाक चीज वो है जो मिसाल के तौर पर मना किया गया है ऐसे जानवर जो खाए नहीं जा सकते और जिनको हम अपनी खुराक नहीं बना सकते या खुदा के लिए उनको नजर करना उस दौर में मना था, वो नापाक। और मकरूह उसको कहते हैं कि जो नापाक तो है लेकिन उसको छूने के सबब से, उसका किसी जगह पर होने के सबब से वो दूसरी चीजों को भी नापाक कर दे, वो मकरूह है। और इसमें सिर्फ बुत नहीं है, मकरूह जादूगरी भी मकरूह के जुमरे में आती है, ज़िनाकारी करना मकरूह के जुमरे में आता है, बुतों को पूजना मकरूह के जुमरे में आता है, और ऐसी कुर्बानियां जिनका ताल्लुक खुदा या खुदा के कलाम या उसके हुक्म से नहीं था, वो खुदा के नाम से नस्ब करवाना या उनको करवाना कि ये खुदा चाहता है, वो मकरूह चीज़ें। और आज अगर किसी चर्च के अंदर, किसी घराने के अंदर, किसी जिंदगी के अंदर कोई शख्स इन चीजों को मानता है, वो जादूगर या जादूगरों के पास जाते हैं, उन पर बिलीव करते हैं, तवीज बनवाते हैं, उनसे अपने लिए दुआएं खैर करवाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मकरूह काम कर रहे हैं, खुदा की नजर में वो मकरूह है। और जो शख्स शादीशुदा है या नहीं है, उसके किसी के साथ भी मर्द हो या औरत हो, नाजायज ताल्लुकात हो, वो भी खुदा की नजर में मकरूह का। और कोई शख्स बज़ाहिर तो खुदा को मानता है लेकिन उसके दिल के अंदर इब्लीसी ख्यालात, जादूगरी, बुत परस्ती है, गैर मबूद है, तो वो खुदा की नजर में मकरूह का। इसलिए याद रखें कि हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसी चीजों पर नजर करें कि जब वो चीज हमें नजर आए, जब हैकल के अंदर कोई बुत नजर आएगा तो तब हम समझेंगे कि अब अखीर ज़माना शुरू हो चुका है। तो आप मुझे बताएं, क्या चर्चिस के अंदर बुत नष्ट नहीं किए गए अब तक है या नहीं है? बहुत से चर्चिस के अंदर कई सदियों से बुत नष्ट किए गए। नई बात नहीं है कि कोई 100 साल हो गए थे बुत ने, कई सौ साल हो चुके, की जरूरत नहीं, आप सब वाकिफ हैं। चर्चिस के अंदर बुत नष्ट किए जा चुके। और फिर मकरूह चीज या उजाड़ने वाली चीज हमारे लिए वो तब बन जाती है कि जब खुदा का कलाम कुछ और बात हमें सिखा रहा है और हम उसे मरोड़ कर कुछ और सिखाते हैं, तो वो बात हमारे लिए उजाड़ने वाली मकरूह चीज साबित होती है। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में हमें ये बात मिलती है कि मर्द और औरत बराबर है। क्या है? मिसाल के तौर पर औरत और मर्द को खुदा ने मिट्टी से ही बनाया। मर्द को अगर औरत से बनाया, मर्द को मिट्टी से बनाया और उसकी पसली से औरत को बनाया और अपने हाथ से बनाया। दोनों के अंदर एहसासात, दोनों के अंदर एक जैसे जज्बात, और इस मामलात में वो बराबर है। लेकिन खुदा ने हुक्मरानी, सरबराही किसको दी है? औरत को दी है, मर्द को दी है। सरबराही खुदा ने मर्द को दी है, सरबराह बनाया, लीड करने वाला बनाया। यहां पर आकर जब कोई शख्स खुदा के कलाम में से ये सिखाए कि देखो जी ये है कि मर्द और एक बराबर ने, हाँ बराबर है, खुदा ने इनको बराबर खलक किया, एक जैसे एहसास, एक जैसे जज्बात, एक ही मटीरियल के बने हम। लेकिन जब कोई ये सिखाए कि ये देखे कि बराबर है, आप भी हुक्मरानी कर सकती है, आप सरबराही कर सकती है, फिर इसका मतलब है कलाम को तुरुरा तोड़ा जाए। फिर ये चीजें हमारे लिए वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज साबित हो। यानी
खुदा के कलाम को तरोड़ मरोड़ कर बयान करना, हैकल के अंदर ये बातें जब नस्ब की जाए, हैकल के अंदर ये असूल बनाए जाए, हैकल का ये स्टैंडर्ड हो जाए, चर्च का ये मयार हो जाए कि हर एक बात में, ताकि कोई नाराज ना हो जाए, कोई रोस के ना चला जाए, सब दियां मुंह रखनिया ने एक दो ना कहना कि नहीं कलाम जो मर्जी आंदा है असी वो गल करनी है जिहदे नाल कोई नाराज ना हो जाए। तो जब ये बातें चर्च का ये मयार कलाम सुनाने का, तालीम देने का होगा, तो फिर याद रखें ये चीज़ें हमारे लिए मकरूह, नापाक ठहरती हैं और यही हमारे लिए उजड़ने का सबब बनती है। इसलिए याद रखें, बाइबल मुकद्दस में अगर किसी घराने के अंदर, अगर किसी चर्च के अंदर, अगर किसी कौम के अंदर कोई औरत जिम्मेदार है, वफादार है, मेहनती है, अपने घर का अच्छी तरह से बंदोबस्त या अपने चर्च का खादिम अच्छी तरह से बंदोबस्त करने वाला, लेकिन वहां पर इन जगहों पर अगर औरत हुक्मरानी करना चाहे, हटाकर, तो याद रखे बाइबल के मुताबिक उलमा या खादमीन इसको ये भी कहते हैं कि ये ऐसी बल्कि बदरूर के अंदर काम करती है, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश थी, वो यही करना चाहती है। उसका शौहर अखियम बादशाह था वक्त का, और भी नहीं तू चुप कर, तेनू नहीं पता की कहता, मैं गल कर लिया, मैं संभालनी है, मतलब किवें संभालना, मैं दसनी है की करना। उसने कई सौ खुदा के नबियों को कत्ल करवा दिया, और जब ये बात एलिया को पता चली तो फिर उसने उनके झूठे नबियों को कत्ल करवाया, और फिर उसके लिए उसने पेशन गोई भी की, उसने नबूवत की कि तेरा गोश्त, तेरा खून कुत्ते चाटेंगे, तेरा गोश्त खा जाएंगे। और वही नबूवत 11 साल बाद एजेबल के लिए पूरी हुई। उसे ख्वाजा सराहों ने महल की, उसके घर की छत से सर के बल नीचे फेंका, और जब उन्होंने कहा कि जाओ उस मकरू, उस नापाक औरत को यहाँ से दूर कर दो, तो उन्होंने जाकर देखा वहां पर कुछ भी नहीं था, सर और पैर की हड्डियों के अलावा। उसने कहा वहां कुछ नहीं, कुत्ते खा गए। वजह क्या थी कि एक तो वो हुक्मरान बनना चाहती थी अपने शोहर को हटाकर, और दूसरी बात वो खुदा के खिलाफ हर एक काम करे, खुदा के नबियों, खुदा के लोगों के खिलाफ। इसलिए याद रखें जीजो, जरूरी ये नहीं कि हम उस बात का इंतजार करते रहे कि नहीं जब कोई बुत नष्ट, हाँ वो भी एक बात है कि हैकल के अंदर बुत भी नष्ट किए जाएंगे, बुत परस्ती शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके पहले जो आप खुदा की हैकल है जो मौजूद है, अगर उनके अंदर बुत परस्ती पहले से शुरू हो चुकी है, तो ये भी उनके लिए मकरूह, नापाक काम और उजाड़ने वाली वबा से कम नहीं। इसलिए याद रखें, बाइबल मुकद्दस में ये एक बड़ी हकीकत और सच्चाई है कि यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आ रहा है। कौन लेने आ रहा है? यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आ रहा है। आप सब कहें कि यीशु मुझे लेने आ रहा है, और ये सच्चाई और हकीकत है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। ये सच्चाई है कि मसीह आए। बहुत से लोगों के नजदीक ये कोई इतनी बड़ी या अहम बात नहीं हो सकती कि हो कि चलो यीशु ने आना ले जाना, लेकिन ईमानदारों के लिए ये शादमानी की बात है, ईमानदारों के लिए ये फतेहमंदी की बात है, और ईमानदारों के लिए ऐसा होना चाहिए, और अगर ईमानदारों के लिए ऐसा ना हो तो उनके लिए ये खतरनाक हाल है और शर्मिंदगी की हालत। बाइबल मुकद्दस में हम रैप्चर के बारे में पढ़ते हैं, आसमान पर उठाए जाने के ताल्लुक से, कि जब मसीह आएगा तो उसके लोग हवा में उठाए जाएंगे, उनके बदन तब्दील हो जाएंगे, जो मसीह के नाम की या खुदा की खातिर मरे होंगे वो जिंदा किए जाएंगे, और जो जिंदा बाकी होंगे वो बदल जाएंगे, ताकि जलाली बदन हो जाए, ताकि उस अपने मकामों में दाखिल हो सके जिनका वादा खुदा ने किया, और यीशु मसीह के कफारे के वसीला से उसके दरवाजे हमारे लिए खुले। अजीजों, याद रखें इस बात कि मकरूह काम, जादूगरी, ज़नाकारी, बुत परस्ती,
ये सब चीजें लालच, धोखाधड़ी और किसी दूसरे शख्स को नीचा दिखाना, खुदा को इन बातों या कामों से नफरत है। कौम बनी इसराइल जो खुदा की चुनीदा कौम है, अपने इन दो कामों की वजह से कई सौ साल गुलामी के अंदर उन्होंने गुजारे, जिनाकारी और बुत परस्ती। जब वो गैर कौमों के बुतों को मानते, फिर उनमें शादियां भी करना शुरू करते, अपने बेटे बेटियां देते और उनसे लेते, जिससे खुदा को सख्त नफरत लगी। बुत परस्ती और जिनाकारी और गैर बुतों को मानना, खुदा को इससे सख्त नफरत है। आज गो कि अगर हम बज़ाहिर किसी बुत को बनाकर उसके सामने सजदा नहीं करते या उसके आगे माथा नहीं टेकते, लेकिन वो तसीर, वो इल्म, वो तलीम, वो बातें अगर हमारे अंदर है, तो याद रखें हम उसके बराबर गिने जाएंगे। हर वो शख्स उसके बराबर ही सजा का हकदार होगा जो बज़ाहिर बुत को सामने रखकर सजदा करता है और जो उसकी तलीम अपने अंदर रखता है। इसलिए याद रखें, अब देखो ना लालच कितनी बड़ी सजा है कि वो बुत परस्ती के बराबर है। किसी को किसी बुत के आगे सजे तो होता होगा, या चलो कम से कम बराबर पे होगा। और हर एक शख्स की ये कोशिश होती है कि हर जगह पे मेरी वाह वाह हो, मेरा लोग नाम लें, और ये कहीं ना कहीं लालच के बराबर। छोटी सी बात होती है, घर च एक बच्चे ने जो एक बोटी मिले, दूजे ने दो मिल जाते, उन्हें लड़ाई हो जाती, उन्हें दो दित्तियां तो मैंने है ना। किसी ने ज्यादा मिल जाए, किसी ने घट, किसी ने महंगा सूट मिल जाए, किसी ने सस्ता मिले, उस पर लड़ाई हो जाती। किसी ने एक मिले, किसी ने दो, इस पर लड़ाई हो जाती। इसलिए याद रखें, आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यीशु मसीह आ रहा है अपने लोगों को लेने, और अपनी पोशाक की, जो हमने शुरू में बात की, अपनी पोशाक की खूब हिफाजत करें, अपने लिबास की हिफाजत करें। और पहली तो बात यह है कि हमें ये मालूम हो कि हमें लिबास मिला भी है कि नहीं मिला। हमारे रूहानी लिबास हमारे पास है भी है कि नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो खुदा की हज़ूरी में झुकने की जरूरत है, खामसार मिलने की जरूरत है। अपनी तमाम तर उन बातों या कामों को जिनका वास्ता या ताल्लुक खुदा के कलाम या खुदा से नहीं, उसको अपनी जिंदगी से तरफ करने की जरूरत है। इसलिए याद रखें, अपने रूहानी लिबास के लिए मोहतात है। याद रखें, आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो क्या लिखा, जब खुदा ने उनको आवाज दी तो उन्होंने क्या कहा, डरे क्योंकि हम नंगे हैं। गुनाह इंसान को नंगा कर देता है, यानी वो उसकी शर्मिंदगी सबके सामने जाहिर करता है, सब लोग उसको देखते। लेकिन हमारे पास रूहानी लिबास न हो तो फिर हम खुदा के हुजूर में शर्मिंदा किए जाएंगे। हम शर्मिंदा होंगे जब वो अपने लोगों को लेने आए। इसलिए चीज़ों याद रखें, हमने खुदा के हुजूर में शर्मिंदगी नहीं उठानी, बल्कि अपने लिबास की हिफाजत करनी, बल्कि अगर नहीं है तो उसको लेने की जरूरत है, ताकि जब ये वक्त आए। और आखिरी बात, बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है कि ये दिन, ये मुसीबत के दिन किन के लिए, उसके बरगज़ीदा लोग हैं, जो उसके चुनीदा लोग हैं, जिनको उसने चुन लिया, जिनको उसने मुकर्रर किया, जिनको उसने अलग किया अपने लिए। ये मुसीबत के दिन उनके लिए कम किए गए हैं। इतनी कदर कीमत है उनकी खुदा की नजर। वरना लिखा है कोई शख्स ना बचता सके। इसलिए याद रखें, आप खुदा के चुने हुए लोग, आप खुदा के मुकर्रर किए हुए बेटे और बेटियां हैं। आपके लिए वो मुसीबत के दिन कटाए जाएंगे, इसलिए कि खुदा आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आपकी हलाकत हो, बल्कि वो चाहता कि आप जिंदगी में दाखिल हो जाए। और हम ये ईमान रखते हैं कि हम इस ज़मीन पर जो अभी यहाँ बैठे मौजूद हैं, हम आसमानी मुकामों में बैठे हुए हैं। ये हमारा तवक्कुल और ईमान है। इसलिए याद रखें, पहली बात कि अपनी जिंदगी के अंदर से ऐसी तलीम, बातें, काम
जो हमारे लिए उजाड़ने वाली मकरूह चीज साबित हो, वो ठहरे, उससे बाज रहे। और फिर अपनी पोशाक की खूब हिफाजत करें, उसे दागदार न होने दें, उसे मैला न होने दें, उसे खराब न होने दें, इसलिए कि जब वो इवेंट, वो प्रोग्राम आए, वो ज़ियाफत आए, वो शादी का दिन आए, जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आए, और याद रखें दुल्हा अपनी दुल्हन दागदार कलीसिया को लेने नहीं आएगा, झुर्रियों वाली कलीसिया को लेने नहीं आएगा, या जिनका लिबास फटा हुआ है उस कलीसिया को लेने नहीं आएगा, बल्कि वो बेदाग, बेऐब और पाक दामन कलीसिया को लेने आएगा। इसलिए याद रखें, आप इस बात को याद रखें कि मसीह लेने आएगा। मैं आपको बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, और ये हकीकत है। इसलिए याद रखें, हमने उसके साथ अगली मुकामों में जाना है तो अपनी पोशाक की हिफाजत करनी है, उस प्रोग्राम के लिए, उस इवेंट के लिए अपनी पोशाक संभाल के रखनी है। जिस तरह हम दुनियावी मामलात में अपनी पोशाक प्रोग्राम आने से पहले उसका इंतजाम करते हैं, इसी तरह उस ज़ियाफत में शामिल होने से पहले अपनी पोशाक की खूब हिफाजत करें, ताकि जब वो आए तो हमें उसके ज़ुहूर में शर्मिंदगी हासिल हो। आमीन। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें।